Hello. Yes. Hello. Good morning, everyone. On behalf of Good morning, DYT's everyone. Royal On College behalf of of Science and DYT's Royal Commerce, College of Science and Commerce, myself, Professor Rashmi myself, Mishra, Professor welcome Rashmi you all Mishra, welcome you all on one day national on one webinar day on national webinar. 1 second. One day national webinar on how to become a radio jockey, challenges and opportunities. So let us begin the day by starting by doing the Saraswati Vandana. I would like to request Professor Meera Menon ma'am to sing a song on Saraswati Vandana. Meera Menon ma'am, over to you. Meera Menon ma'am, please unmute yourself. Thank you, ma'am. Good morning, all. Before starting this session, I welcome you all on behalf of Royal College of Science and Commerce, Dombivli, for attending one-day national level seminar on the careers as a radio jockey, its challenges and opportunities. Before starting with the program, let us take the blessings of Goddess Saraswati, symbol of knowledge, music, art, wisdom, and nature. Let us take the blessings of the divine power, followed by a prayer. कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवे एवैः सदा वन्दिता तामान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम् Choice a job you love, and you will never have to work a day in your life. Find out what you like doing best and get someone to pay you for doing it. I welcome you all, myself, Meera Menon, faculty of BMM of Royal College of Science and Commerce, Dombivli West, heartily welcome you all for today's session. In the year 1990, Dombivli Yuvak Education Trust was established under the leadership of late Shri Surendra Vajpayee. Royal College of Science and Commerce Dombivli, affiliated to Mumbai University, was established on 6th of August 2009 under the chairmanship of our President Sir Shri Rajnikant Shah. Along with the Degree College, Royal Junior College and Royal International School is also being managed simultaneously under the trust. Degree College started with a student count of just 40 in the year of 2010, and now we are very proud to say that we have a strength of over 1,000 students in just few years of our journey. Our college offers various courses such as BCom, BMS, BAF, BAMMC, and BSc IT. Apart from all that, our college is also undertaking various idol courses for the job-going students. Idol courses under the Mumbai University, which was started in our college from the year of 2014, runs under various courses such as BCom, MCom, BA, MA, MSc, IT, MCA, etc. Now, without further ado, I will turn the time over to Professor Rajkumar Pillai, sir, coordinator of BA in Multimedia and Mass Communication. Over to you, sir.
Requesting Raj sir to please unmute himself. A warm welcome to all of you for the one-day seminar. It's a great privilege for me to introduce our principal sir, Dr. Vivek Kumar Patil. Sir has done his MSc PhD in botany. He is a principal of Royal Degree College as well as Royal Junior College. Sir is Dean and Adjunct Professor of Armite Institute of Engineering and Technology, Sangaon. Is adjacent professor for Indo-European Business School as well as Indo-European University. Sir is a resource person for Olympiad, Dr. Homi Baba Research Center, DARC, Mumbai. He is a editor-in-chief of International Journal of Multidisciplinary Science. Sir is an advisor for Paslani Academy of Business Science, Mumbai. Apart from that, Sir run his own trust called Dr. Vivek Kumar Patil Research Educational Trust. Sir is a fellow Academy for Environment and Life Science, member of editorial board, International Journal of Environment Science. He is an advisor for Armite Institute, advisor for Ekatvam Service Private Limited, Turbay, Navi Mumbai, advisor for Bombay Stock Exchange Brokers Forum, Port, Mumbai. Apart from that, sir is a PhD coordinator for various universities, State of PhD, Regional DM Patil College and Engineering Management, research guide for Sridhar University, Rajasthan. Apart from that, sir is also part of convener Rotaract Club of Youth District 3142. Recently, sir have achieved Mahatma Gandhi Lifetime Achievement Award. It's an honor and a great privilege to introduce a great personality, Dr. Vivek Kumar Patil, sir. Now I request our principal, sir, to share a few words. Hello. 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 Yes, sir. Audible? Yes, sir. Sir, can you? Yes. Good morning, all. Good morning, our chief guest, Ranjit Kaur, madam. Welcome to joining the Royal College of Science and Commerce special one-day webinar conducted by our college. It's a great pleasure that our BMM department has conducted this webinar. What are the opportunities related with mass media as in radio jockey? It is in radio jockey that correlates with the media students. All the students are getting good opportunity by this seminar. All my staffs, all the students, welcome to joining this webinar. Best of luck for this webinar. Thank you. Yes, sir. Hello. Yes. Hello. Am I audible? Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you, Menon ma'am, and thank you, Raj sir. Now, I would like to introduce our guest for today. वो रेडियो ही है जिसने कानों से देखना भी सिखाया और आज इसी हुनर को हमें सिखाने के लिए हमारे साथ हैं आरजे तरनजीत कौर. Ma'am has been working as a radio jockey from 2010. She has worked in All India Radio, with Bharti, Radio Pink City, Radio City, and currently working as an RJ in FM Radio 107.1 Mumbai. She has completed her master's in mass communication and journalism. She has also completed her master's in sociology. Ma'am has worked as public relation officer in JM Environment Private Limited for 2 years. She is currently pursuing her PhD in television. She is
She is since 2015. Ma'am is teaching bachelor's and master's students of nursing, and I am truly blessed that I am one of the students learned from ma'am. I welcome you, ma'am. Please, I will request you to start the session. Thank you so much, Rashmi, for your warm welcome. Am I audible now? I just want to confirm my voice is coming or not. I hope I'm audible. Yes, Then ma'am, only it's I will audible. start. Yes, Okay. So first of all, I would like to thank Dr. Patil, Meera ma'am, Raj sir, and my favorite Rashmi. And today, according to the topic, first of all, I want to just start with the radio, and I'm not going to share the history of radio. You can read from the internet. The main thing is radio. Whenever I start my show, so I used to start like नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं कुड़ी कमाल और आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो और आज की शाम तो रंजीत कौर है थोड़े ना so this is used to I start my show I used to do evening shows sometimes late night shows but radio you can listen anytime I will use Hindi and English both languages I will communicate my talk today so let's start on air we all are talking on air we all are connecting with the waves only so radio is kind of quite important in every age group you can listen anytime according to your mood as well if someone is not good in mood so maybe radio can change the mood so yes if you want to become a radio jockey so how you can start so first of all I want to mention what I will cover in my session first of all I will mention the full form of radio according to my experience because I've connected with the radio. I've started my line in radio in 2010, so I can say yes, I have the full form of radio according to my experience. Then I'll tell about the qualities. If you have these qualities, or if you don't have, you can develop the qualities according to the radio. And what are the challenges? Then I'll talk about the opportunities in radio, how you can apply for radio. If you want to become a radio jockey, then what are the what we can say what are the positions available if you don't want to come as a radio jockey then what are the other jobs is available in radio so first of all I want to mention about All India Radio because I started my journey with All India Radio so according to the radio the what is important because we are we were struggling with the connectivity so what is important in radio the R letter the first alphabet that is R so R is important for rhythm so rhythm is important if you are going on air your link is important if you want to become a radio jockey so the first myth every time किसी से भी अगर बात की जाती है तो वो कहते हैं कि आवाज अगर आपकी अच्छी है तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं ये एक कहीं ना कहीं एक मिथ है या फिर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक अच्छी आवाज आपको रेडियो जॉकी नहीं बनाती है अच्छी आवाज के साथ में आपका अच्छा दिमाग आपकी अच्छी जुबान आपकी अच्छी सोच आपको अच्छा एक रेडियो जॉकी बनाती है सो इफ यू वांट टू अ गुड कम्युनिकेटर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड रेडियो जॉकी एंड द सेकेंड थिंग नाउ दी डेज जो आज का यूथ है वो बहुत हरी में रहता है राइट सो दे वांट फेम and instant fame nahi aata hai so if you want to become a radio jockey so don't go for instant fame right so first of all you have to set your mind that you seriously want to become a radio jockey आपको लोगों से बात करना पसंद है या नहीं आपको आपके लाइंस पर लाइक वी यूज्ड टू अनाउंस 2200 600 700 एंड 800 ये 3 लाइंस है जिन पर आपको कॉल आएंगे आपको लिसनर से बात करनी होगी सो आप लिसनर से बात करने के लिए तैयार हैं आप उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं जिनको आप जानते नहीं हैं और फाइनल थिंग आपको नहीं पता है कि आपके सामने वाला लिसनर आपको सुनकर आपको क्या कहने वाला है दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सो यू हैव टू सेट योर माइंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस and if you are not interested in radio jockey so you can develop your interest and how you will develop your interest first of all you have to listen radio now these days people used to think like
रेडियो जॉकी अगर हमें बनना है तो हमें रेडियो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, सो बिल्कुल सुनना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू लाइक एनी वन RJ, so don't listen the same person, try to listen any other person as well, admire yourself. So the second letter in radio, if I write RADIO, so the second letter used to come is for admire. Admire yourself, admire your work, and admire others also. How you will learn from others? If you will start learning, because without learning you cannot learn. So and radio सुनने से ही सब कुछ नहीं आ जाएगा. If you are interested in poetry, you have to read other poetries. If you are good in reading, then only you can write. If you want to write your book, then you have to read other books. That's the same thing with the radio. If you want to become a radio jockey, you have to listen अदर्स रेडियो पर्सन. अगर आप रेडियो पर ऑन एयर जाते हैं तो आप अपना शो कैसे शुरू करेंगे, आपका कंटेंट क्या होगा? बिकॉज जो रेडियो स्टेशन हैं, व्हेन आई स्टार्टेड विद रेडियो जॉकी, सो दे हैड गिवन द शो नेम. लाइक करंटली जो मैं करती हूँ शाम को, दैट इज लव यू जिंदगी. सो लव यू जिंदगी में आप किस तरह की बात करेंगे कि आपका लिसनर आपको एक बार सुनता है तो सुनता ही जाए. सो द रेडियो जॉकी में अगर मैं बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि आप रेडियो पर सिर्फ बोले ना, रेडियो पर जो आप बोल रहे हैं उसे आपका लिसनर फील करे. आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला सुनने के साथ साथ अगर फील करता है तो यस, आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो अच्छी आवाज़ अगर आपके पास है तो माशाल्लाह. अगर नहीं भी है और आपको लगता है कि नहीं आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, तो आप अपनी आवाज़ को डेवलप करके रेडियो जॉकी बन सकते हैं. और अगर कहीं भी आपके माइंड में आज तक था कि नहीं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं रेडियो जॉकी नहीं बन सकता हूँ, तो ये बात आप आज से ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए. अगर आप सच में रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए कि सामने वाला की, और जो बातें आपको अच्छी लगे उसे आप नोट डाउन करना ना भूलें. And another challenge is, I will cover the full form of radio, but between I want to mention is, first of all we have to set our mind. That mindset should be important, because without mindset, maybe आज आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, कल कोई और सेशन होगा उसमें आप टीवी एंकर बनना चाहेंगे, then later maybe you want to become a film producer, actor or dancer. You can try, right? But you have to set your mind, because at the time of interview if they will ask, I will share the audition part also, कि रेडियो में जब आप जाते हैं तो ऑडिशंस कैसे लिए जाते हैं और व्हाट इज़ द प्रोसेस, वहाँ पर क्या पूछा जाता है. वैसे तो ये अंदर की बात होती है, नहीं बताई जाती है, बट आई ट्राई टू शेयर, जितना हो सके उतना मैं आपसे शेयर करूँगी. एंड द मेन थिंग फॉर रेडियो जॉकी, स्वीट वॉइस नहीं है चलेगा, बट द नॉलेज शुड बी प्रॉपर. जो भी आप लिसनर से बात करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउ दीज डेज द प्रोमोज आर गोइंग ऑन रिलेटेड टू कोरोना, राइट? सो रेडियो जो है वो ये नहीं कहेगा कि आपकी कोरोना से आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, पर रेडियो आपको ये ज़रूर बताएगा कि कोरोना से बचा कैसे जा सकता है. सो द पॉजिटिव थिंकिंग शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन एयर, एवरीबडी इज लिसनिंग टू यू. सो नेवर एवर थिंक कि लेट नाइट शो है तो कोई नहीं सुन रहा होगा, या फिर कोई और सुने ना सुने, पर ड्यूटी ऑफिसर हैं, आपके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पेक्स जो हैं वो ज़रूर सुन रहे होते हैं. तो आप सिर्फ माइंड में ये ना, और एवरी टाइम व्हाट आई डू इज़, मैं अपना हर शो ऐसे करती हूँ जैसे मेरा पहला शो है. सो दैट इज़ द मेन थिंग. आप अपने शो को, अपने पैशन को किस तरह से लेते हैं. क्या वाकई रेडियो जॉकी बनना आपका पैशन है? अगर नहीं है तो यू कैन डेवलप, बिकॉज RAD, the next letter is D. So according to D, you can develop your skills, you can develop your interest, and another thing you can develop your skills as well. अगर आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, if you want, अगर आप टीवी में जाना चाहते हैं तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए. How I started for radio, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती थी और मैं उसे सुनती थी कि मैंने कैसे बोला है, क्या नहीं बोला है, कहाँ पिच लो है, कहाँ पिच हाई है, आपके माइक का ना होना चाहिए. और उसके अलावा 6 inches 4 inches अकॉर्डिंग टू योर पिच यू कैन मैनेज योर माइक डिस्टेंस. एंड अनदर थिंग इज कंटेंट शुड बी प्रॉपर. अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपके लिसनर्स आपको
एक बार सुनेंगे कि आपकी आवाज़ नहीं है, आपको सुनना पसंद करेंगे। बट अगर आपके लिसनर्स आपको बार-बार, अगर आप चाहते हो कि आपके लिसनर्स आपको बार-बार सुने, सो द कंटेंट शुड बी प्रॉपर और एवरी एज ग्रुप का बंदा उससे कनेक्ट होना चाहिए। व्हाट आई डू फॉर माय शो, जो भी मुझे सुने उसे लगे कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। जो भी लिसनर सुन रहे हैं उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये मुझसे कनेक्टेड है, ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा होता है, हाँ, मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता है। इफ यू विल टॉक लाइक दिस, बिकॉज वी नेवर नो कि जो हमें सुन रहा है वो 8 साल का बच्चा है या 18 साल का है या 88 का है, राइट? सो जो मैं बात कहूंगी वो 88 को भी रिलेट होनी चाहिए, 18 को भी होनी चाहिए एंड 8 इयर्स का भी अगर कोई सुन रहा है तो उसे होनी चाहिए। So the another letter, if I connect RADIO, so develop your skills. The second, then another letter, if I mention the interactive thing. बिकॉज रेडियो में एक बंद कमरा है, उस पर सिर्फ आप बैठे हैं और आपके साथ में जो टेक्निक्स हैं, कंसोल है, एक साइड यहाँ पर लेफ्ट साइड कंप्यूटर होता है, एक राइट साइड में होता है एंड यू विल गेट हेडफोन्स एंड माइक और सामने जो है वो आपका होता है कंसोल और उसमें जो माइक्स लगे रहते हैं दैट इज आपका जो कंसोल में जो फेडर है, फेडर इन आउट करके आपकी आवाज़ जो है वो जाएगी। साइड में फोन लाइन्स रखी होती हैं, 3 फोन होते हैं, डिपेंड करता है आपके स्टेशन पर कि उनकी कितनी कनेक्टिविटी है। सो हमारी 2 लाइन्स रखी रहती हैं। सो आपको कोई दिखेगा नहीं और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको कौन सुन रहा है। सो देयर इज चैलेंज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सो अगर आप रेडियो जॉकी बन जाते हैं तो ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने हैं बिकॉज आपको नहीं पता है कि कौन सुन रहा है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है और आपको सबको कनेक्ट होकर चलना है। देन साथ में साथ आपको आपके नंबर्स अनाउंस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल द कनेक्टिविटी एंड इंटरक्टिव नेचर की आपको लोगों को ये समझाना है। फॉर एग्जाम्पल द करंट एग्जाम्पल व्हाट गोइंग ऑन कि लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं। सो करेंटली वी आर रनिंग इज लॉकडाउन वाला लव कि आपके लॉकडाउन में ऐसा कौन सा लव है, कौन सी ऐसी बात है जो आप शेयर कर सकते हैं, या आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है लॉकडाउन में जो आपने घर में, घर का एक कोना जो आपको बड़ा प्यारा है। सो दीज टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट यू कैन डेवलप। और ये कैसे होंगे आपके, इफ यू विल लर्न की राइटिंग, लोगों को पढ़ना सीखना। तो रेडियो जॉकी सिर्फ सिंपल नहीं पढ़ता। इफ यू विल रीड न्यूज़ में कोई आप खबर पढ़ते हैं कि जैसे जिंगल्स बनाए जाते हैं हाथ धोने के ऊपर, साबुन को कैसे इस्तेमाल करना है, मास्क को कैसे पहनना है, तो हम ये बताएंगे कि हाँ मास्क पहनना है, कब नहीं पहनना है, कितनी देर पहनना है। तो ये सारी चीज़ें यू कैन शेयर। सो यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स कि आप रेडियो पर किस तरह की बातें जो है वो शेयर करें। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। और इंटरक्टिव इन विच सेंस, इंटरक्टिव इन लाइक आप कनेक्टिविटी जो देंगे, आपकी बात जो है वो एवरी लिसनर से कनेक्ट होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आपका लिसनर आपको कॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट माधुरी दीक्षित, तो माधुरी दीक्षित के बारे में आपने बात की, देन मे बी यू विल प्ले 1 2 3, देन द लिसनर विल कॉल और उनको कोई गाना सुनना है माधुरी दीक्षित का, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ उनकी कौन सी फिल्म आई थी और कौन कौन से गाने हैं। और उसके अलावा करेंटली माधुरी दीक्षित टीवी में भी आ रही हैं एज अ जज एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। द अनदर थिंग फॉर रेडियो इज RADIO, सो द आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट। वट एवर यू डू इन योर लाइफ, आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट। सो डजेंट मैटर आप रेडियो में जाते हैं, टीवी में जाते हैं, फिल्म में जाते हैं। So output you can relate with your life, whatever you are doing in lockdown and after lockdown, whatever you are doing in your life as well. So output is important, your result is important, what are you doing. So as a tip I want to share, take a pen paper. See, still I have pen paper. I used to write with pencil so I can rub. So you can also start writing. कुछ लिखना शुरू करें, कुछ शेर व शायरी बनाना शुरू करें। टेक अ स्मॉल वर्ड लाइक आई लव दिस वर्ड लाइक जिंदगी। सो जिंदगी को आप कैसे जीते हैं उसको लिखना शुरू करें। देन स्टार्ट शेर व शायरी एंड स्टार्ट 2 liners 4 liners रिलेटेड टू जिंदगी। देन यू विल बी एबल टू राइट पोइट्रीज एंड यू कैन कनेक्ट कि जिंदगी, फिर जिंदगी नामा, जीना इसी का नाम है। सो लिंक यू कैन कनेक्ट, राइट। सो इसे धीरे धीरे आप अपना शो बना सकते हैं बिकॉज आपको स्क्रिप्ट कोई नहीं देगा, यू हैव टू राइट
एंड ऐसा नहीं कि साल में एक बार स्क्रिप्ट लिखनी है, यू हैव टू राइट एवरी डे एंड यू कैन नॉट रिपीट ऑल्सो। आज हिट आपने बोल दिया तो आप उसको 10 दिन बाद नहीं बोल सकते, इवन आपका जो ईमान है वो भी अलाउ आपको नहीं करेगा। सो द आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट वेन एवर यू डू योर शो, सो डू योर होमवर्क. Homework is very important. Homework in which sense? If you want to become a radio jockey, so the homework you can start being a media student. How can you do your homework now these days? Even in the class, whenever you have joined, I don't know the year, आप किस ईयर में हैं अभी, but when I was doing study, I started because my bachelor is in music or my master's in journalism and mass communication. So when I was doing my master's and bachelor, so I was like keen interested in my homework. And what was the homework? अगर आप टीवी में जाना चाहते हैं, so TV related homework. First I want to share the radio related homework. So what is radio related homework? The first homework is आपको एक शो सुनना है, किसी भी आरजे का सुन सकते हैं. अगर इसका नहीं पसंद आया तो नेक्स्ट डे आप किसी और आरजे का शो सुनेंगे. So every day you have to listen one show. Then the second point as a homework what you can do is you have to write the points whatever you have learned from any jockey. Even if you take me also, so whatever I have shared, you have to apply in your life. What I have done, so that's why I am sharing the same with you. अगर आप भी ऐसा करें तो आप भी एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हैं. सो द आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. आप रेडियो सुनने के बाद में और क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. यू कैन राइट एज इफ यू विल रीड एनी लिटरेचर, सो यू आर एबल टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर. द सेम थिंग विथ रेडियो. इफ यू विल लिसन रेडियो, सो यू कैन ऑल्सो राइट कि हाँ इस जॉकी ने ये बोला, मुझे अच्छा लगा. सो व्हाट वाज द टॉपिक एंड कितने मिनट की बात थी, इससे हम सेकंड्स में बात करते हैं. 1 आवर का जो शो था, इसमें एज अ रेडियो जॉकी यू विल ओनली गेट 6 minutes or maybe 5 minutes, and in every link you will get 60 to 80 seconds max to max, because उसके बाद वही same like back to back or 3 songs, or after 3 songs maybe you will get chance just promos, jingles and all. So being a radio jockey आपको बहुत कम टाइम मिलेगा. ऐसा नहीं जैसे आप रेडियो जॉकी बन गए तो आप 1 hour, 2 hour, you're just talking. Listener will not listen because listener also like the good music. So the sense of music should be important. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो ट्रैक है, the track should be important. तभी आपका जो प्रोग्राम is disconnected now. Yes, ma'am. Better? Yes, ma'am. Yes. Okay, the quality is okay now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can. Okay, I don't know when I lost the network. So I was talking about the qualities of a radio jockey. So I will quick mention the qualities. You have to be very quick to learn the knowledge, and you have to be very quick to answer to the listener. The uniqueness is important in your talk. The uniqueness is important in your voice. The uniqueness is important your program the presenting way. So whenever you will present your program, आप किस तरह से प्रोग्राम को शुरू करते हैं, मिड तक लेके जाते हैं, और the ending should be also proper, because you never know कि आपके लिसनर ने रेडियो कब ऑन किया है. So you cannot feel the pressure in your voice कि मैंने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से किया था, then after that I felt maybe bored or I felt like tired, because every time now these days, because एक रेडियो स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 शोज होते हैं, और मैक्स टू मैक्स आप अगर आरजे को शिफ्ट भी करें तो 6 से 8 से आरजे होते हैं. सो एक आरजे को उसकी कुर्सी से हटाकर आपको बैठना है. सो आपके अंदर वो यूनिकनेस जो है वो होनी जरूर चाहिए. द अनदर क्वालिटी, एडमिट योर मिस्टेक, बिकॉज आप अपनी गलती से सीखना जरूरी है. तो गलती से सीखने के लिए आपको पहले मानना जरूरी है कि ये गलती किसकी है, बिकॉज दुनिया में सबसे ईजी तरीका जो होता है वो ये होता है कि अपनी गलती का इल्जाम किसी और पर लगा देना. और वही बहादुर होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ ये जो गलती है वो मुझसे हुई है. सो द अनदर थिंग, बी लॉयल योरसेल्फ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, अगर आप अपने प्रोग्राम के साथ में, अगर आप अपनी टैलेंट के साथ में, अगर आप अपनी जॉब के साथ में, नॉट ओनली द रेडियो, बिकॉज रेडियो में सिर्फ रेडियो जॉकी की जॉब नहीं होती है, उसमें यू कैन ज्वाइन एज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर, जैसे आप बाद में यू कैन ज्वाइन, बिकॉज स्टार्टिंग में यू कैन ज्वाइन एज अ इंटर्न, बिकॉज आई मेंशन अबाउट द इंटर्नशिप ऑल्सो कि रेडियो में इंटर्नशिप कैसे की जाती है, और अगर आप इंटर्नशिप रेडियो में करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या सिखाया जाता है. द अनदर थिंग, you have to be very intelligent
related to the techniques because टेलीफोन लाइंस को कैसे हैंडल करना है, कंसोल को कैसे हैंडल करना है, 2 सिस्टम्स लगे हुए हैं उनको कैसे हैंडल करना है. सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजीज. एंड समटाइम्स हम कुछ इंटरव्यूज जो होते हैं लाइक जैसे अभी ईद पे जो किया था दैट इज रिलेटेड, हमने जो किया था वो था आमिर खान जी के साथ में था. सो आमिर खान के साथ में अगर आप बात कर रहे हैं वो लाइव पर क्या कह रहे हैं तो इट वाज रिकॉर्डेड. सो समटाइम्स हम रिकॉर्डेड शोज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विद सेलिब्रिटीज बिकॉज सेलिब्रिटीज का आने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर शो टाइम, राइट. सो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू लर्न द एडिटिंग पार्ट एज वेल कि आपको एडिटिंग कहाँ से करनी है, कौन सा जो पार्ट क्लिप है वो रखनी है, कौन सी ऑडियो क्लिप आपको हटानी है, कौन से सॉन्ग आपको ऐड करने हैं. सो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी. एंड अनदर मैटर आई वांट टू मेंशन टास्क. So take as a task, every task you have to do, you have to give your 100% in every task because रेडियो खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो आप उसे अगर एक टास्क की जैसे लेते हैं सो यू हैव टू कंप्लीट एवरी टास्क. द अनदर थिंग, योर वॉइस शुड बी वेरी इम्प्रेसिव बिकॉज आपकी वॉइस अगर अपने आप को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी आवाज से सब लिसनर्स को कैसे इम्प्रेस करेंगे. और लिसनर्स को इम्प्रेस करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि आपकी आवाज, क्योंकि आपकी आवाज लिसनर तक जाएगी तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स. आप जो वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं उससे किसी को हर्ट ना हो जाए या फिर बिकॉज हम सबका तो टेक केयर नहीं कर सकते हैं बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे. सो दैट इज द मेन थिंग फॉर रेडियो एंड द एनर्जी शुड बी प्रॉपर बिकॉज 2 से 3 घंटे का समटाइम्स होता है. सो मिनिमम इज 3 hours और 2 hours. You can say the max to max is 5 hours because I did for 1 to 5. I'm talking about the late night show जो रात को 1 बजे शुरू होता है और सुबह 5 बजे तक रहता है. किसने सुना या फिर 3 बजे किसने सुना. सो द एनर्जी शुड बी सेम. अगर आप 1 बजे बात कर रहे हैं तो भी, अगर आप 2 बजे बात कर रहे हैं रात को तो भी. और सबसे ज्यादा जो कॉल आते हैं वो नाइट में आते हैं बिकॉज जो मुंबई है वो कभी सोती नहीं है. सो द एनर्जी शुड बी प्रॉपर. द अनदर क्वालिटी शुड आई मेंशन, यस आई कैन मेंशन द स्किल्स यू हैव टू डेवलप. स्किल्स एज वेल, रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए बिकॉज बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट हम सोचते हैं कि हमने कैमरा हाथ में ले लिया तो हम फोटोग्राफर बन जाएंगे बट कैमरा हाथ में लेते ही हम पढ़ते हैं कि सेम थिंग. अगर आप टीवी में जाना चाहते हैं, फिल्म में जाना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटिंग सीखते हैं फर्स्ट, राइट. सो लिखना पढ़ना ये बहुत जरूरी है. जो कहते हैं ना पढ़ेगे लिखोगे बनोगे नवाब. तो आप नवाब जो है आप रेडियो के नवाब बन सकते हैं बट उसके लिए यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स बिकॉज 60 to 80 सेकेंड्स के अंदर आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज और आपको इंटर्नशिप्स कैसे मिल सकते हैं रेडियो में. क्विकली मैं वो मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर. इंटर्नशिप का जो प्रोसेस होता है बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर बैचलर और इन द 3rd year also because in the 2nd year also universities, colleges used to ask for the internship certificate. So what you can do is whenever you will listen radio, हम रेडियो करते हैं कि अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आप ऑडिशंस के लिए आ सकते हैं. तो डायरेक्टली दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन अप्लाई बिकॉज व्हेन आई हैड अप्लाई आई वाज लिसनिंग रेडियो और उसमें बोला कि अगर आप लाइक आरजे हंट, राइट, आरजे हंट वी यूज्ड टू अनाउंस. सो मैंने वहां पर सुना था कि अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो ये हमारा लिंक है और इस पर आप आपको बुलाया जाएगा. सो आई डिड द सेम. And now these days you can apply for internship as well. So what is the process for internship? And check online website पे आप चेक कर दीजिए. फिर चेक रेड एफएम ऑल्सो. रेड एफएम पर भी एक इंटर्नशिप का कॉलम आता है, रेडियो सिटी पर आता है और एफएम रेनबो पर हम खुद से अनाउंस करते हैं कि हमें ज़रूरत है कुछ इंटर्न्स की तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं. सो फॉर इंटर्नशिप ऑल्सो यू हैव टू लिसन रेडियो. और अगर आप रेडियो नहीं सुनते हैं सो इफ़ यू हैव गुड कॉन्टेक्ट्स यू विल always get to know कि कब कहाँ पर internship start हो रही है. And what you will learn in internship, you will get program editing. Starting में आपको program edit करने के लिए दिया जाएगा. Then आपसे writing part कराया जाएगा.
देन लेटर आपको आर्टिस्ट के साथ में समटाइम्स ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप शो करते हैं एंड ऑल। फिर आपको सेलिब्रिटीज के साथ में रिकॉर्डिंग का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है which channels you are going to join for your internship. So that is the main process for internship, because आप खुद से आपके पास कोई नहीं आएगा बोलने की कि यहाँ पर इंटर्नशिप का अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। और मे बी आपकी यूनिवर्सिटी में कोई कंटैक्ट हो, आपके कॉलेजेस में कोई कंटैक्ट हो, तो आप इंटर्नशिप वहाँ से ज्वाइन करवा सकते हैं। बट द मेन वे, जो मेन रास्ता है वो आप खुद हैं जो खुद से बनाते हैं, क्योंकि अगर इंसान खुद से मदद नहीं करता है तो खुदा भी आकर उसकी मदद नहीं कर सकता है। बट यू कैन चेक एवरी टाइम ऑनलाइन, यूज्ड टू मेंशन ऑनलाइन कि हमें इंटर्न्स चाहिए। उसके अलावा हम रेडियो पर भी अनाउंस करते रहते हैं। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पर जो हमारे पेज है, एफएम के जो पेजेस होते हैं, आप उन्हें फेसबुक पेज पे, इंस्टा पर आप फॉलो करेंगे, सो यू विल गेट टू नो कि कहाँ पर इंटर्नशिप अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। Sometimes it's paid, हम paid internship कराते हैं, sometimes it's unpaid, but it's good if you will not get any money, or if you, and it's good because आपका DA निकल जाता है। but अगर आपको without paid भी मिलता है, so better to join, because जो चीज़ वहाँ सिखाई जाती है वो कहीं नहीं आपको सीखने को मिलेगी। एंड डोंट जॉइन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पर ये बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, जहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको 21 दिन में आपको रेडियो जॉकी बनाना सिखा देंगे, या इंस्टीट्यूट, बिकॉज दे यूज टू आस्क फॉर 2 लाख 3 लाख फॉर लाइक, बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जाता है उनकी तरफ से, और बोला जाता है कि 2 मंथ का ये सर्टिफिकेट कोर्स होगा, देन आफ्टर सर्टिफिकेट कोर्स यू कैन बिकम अ रेडियो जॉकी। ऐसा नहीं होता है। सो रेडियो में they will not ask for any certificate, they will just ask the graduation. If you are a media student, then maybe you will get reference, but if you are an art student, science student, and any other field, so if you are a proper graduate, you will get the same chance, because वहाँ पर ये काम करता है, आपकी जुबान काम करती है, extempore होता है। So these are the process to join internship. Now let's talk about the ये इंटर्नशिप हो गया, अपॉर्चुनिटीज आप ऐसे मिल सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा लकी रही थी, मे बी बिकॉज आई जॉइन डायरेक्टली एज अ रेडियो जॉकी। इंटर्नशिप का नहीं था, मैंने डायरेक्टली एज अ रेडियो जॉकी ही ऑडिशन दिया था और हो गया था। बट इफ यू विल गेट अ चांस फॉर इंटर्नशिप, देन लेटर यू कैन, आपको असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर, आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स को असिस्ट कर सकते हैं। लाइक अनु कपूर जी का जो बिग एफएम पे शो जाता है, आप उसे असिस्ट कर सकते हैं। और नाउ दीज इज लाइक बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, लाइक करिश्मा आ रही है, सॉरी करीना कपूर आ रही हैं। सो इस तरह के शोज को आप असिस्ट कर सकते हैं। सो यू विल गेट मोर नॉलेज। सो नॉलेज जो है वो 4 दीवारी में तो कभी नहीं मिलेगी हमें। जो लॉकडाउन में जो 4 दीवारी है वो अभी मिल रही है बिकॉज ऑफ दी कनेक्टिविटी। अगर आप इस कनेक्शन में कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगी। द सेम थिंग आफ्टर लॉकडाउन, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सो बेटर टू मीट पीपल, उनसे जो है आप सीखने को मिलना चाहिए आपको। और एक पर्सनल चीज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कभी भी अपने एज ग्रुप में कभी फ्रेंडशिप नहीं की। मैंने हमेशा अपने से सीनियर एज ग्रुप में फ्रेंडशिप की। द प्लस पॉइंट ऑफ दिस फ्रेंडशिप, आपको आपके सीनियर से हमेशा सीखने को मिलेगा। अगर आप छोटे अपने एज ग्रुप से कम लोगों के या अपने बराबर के एज ग्रुप में करेंगे तो आपको उतनी ही नॉलेज मिलेगी हर एक एज ग्रुप के पर्सन के पास में होती है। तो आप अपने से बड़े लोगों के पास में बैठना उठना सीखें। आप किसी भी तरह के एज ग्रुप से वैसे सीख सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना क्या सीख पाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ऑडिशंस राउंड। If you will get the chance कि हाँ अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आप ऑडिशंस देने आ सकते हैं। So that is the final stage जहाँ पर आप ऑडिशन के लिए पहुँच जाते हैं। So what will happen now these days, we are taking the written test। अब written test में क्या होता है? written test में आपसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें you have to write I still remember the question, जिसमें 3 प्रोग्राम फिल्म प्रोड्यूसर्स के नाम थे, 3 या 5। देन यू हैव टू सिलेक्ट कि आप इसमें से किस प्रोग्राम प्रोड्यूसर ने, फिल्म प्रोड्यूसर का आप इंटरव्यू जो है अगर आपको चांस मिलता है तो कौन से 5 क्वेश्चंस हैं जो आप एक फिल्म प्रोड्यूसर से पूछना चाहेंगे। उसमें नाम थे आई थिंक संजय लीला भंसाली, राकेश रोशन और अदर प्रोड्यूसर्स के नाम थे। सो हाउ
यू विल राइट द क्वेश्चन। ये इस तरह का रिटर्न टेस्ट होता है। और कुछ क्वेश्चंस थे रेडियो रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस थे फिल्म रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस थे उसमें टेलीविजन रिलेटेड एज वेल, और कौन सी फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म के प्रोग्राम, उसका प्रोड्यूसर कौन था, डायरेक्टर कौन था, ये सारी चीजें भी ऑडिशंस के टाइम पे पूछे जाता है अकॉर्डिंग टू योर करंट अफेयर्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग की लास्ट फिल्म जो आई थी वो कौन सी थी। तो ये सारी तो जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपसे पूछी जाती है। रिटर्न में आपसे क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। यू गेट अ चांस टू टेक अ इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन, so what you will ask, write down. Then other questions you will get if you are doing a phone-in program. Okay, let's talk about the phone-in program. What is phone-in program? You have to take the calls online while doing your program according to decided topic. So आपको एक topic दिया जाता है in your written exam. उस पे you have to write the questions. You have to write the script proper if you are taking calls online. So these are the talk about two related to phone-in program. The another program is talk shows. Talk shows means you are inviting, we are just talking about any personality, like I am talking, like for example अगर मैं राजेश खन्ना साहब की बात कर रही हूँ, so काका बाबू और किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया और किस तरह से उन्होंने, फिर उन्हीं से रिलेटेड गाने यू हैव टू राइट। सो यू हैव टू राइट वन स्क्रिप्ट इन द रिटन टेस्ट। सो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जिनको आपको रिटर्न में आंसर करना होता है। यू विल गेट आई थिंक 1 आवर का टाइम। देन आफ्टर द रिटन टेस्ट यू विल गेट द रिजल्ट विद इन अ वीक। अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं देन दे विल कॉल यू फॉर द ऑडिशन राउंड, बिकॉज नाउ दीज डेज हर किसी का ऑडिशन नहीं लिया जाता है। फर्स्ट दे हैव टू चेक योर स्किल्स इन द राइटिंग पार्ट, देन दे विल कॉल यू फॉर द ऑडिशंस। देन ऑडिशंस में क्या होता है, दे विल गिव यू 1 शीट ऑफ पेपर एंड उसमें जो स्टार्टिंग में होता है उनका दैट प्रोग्राम इंट्रोड्यूसिंग लाइन लिखी रहती है। तो एग्जाम्पल जो हमारी लाइन होती है लाइक हाउ यू विल स्टार्ट, सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। देन आप सुन रहे हैं ऐसा, सो लाइक गुड मॉर्निंग मुंबई, आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो और सुबह के 8 बज चुके हैं और आपके हाथ में है चाय का कप जिसे आप चाय की चुस्की के साथ में पी रहे हैं और साइड में रखा हुआ है न्यूज़पेपर, राइट। तो उसमें जो खबरें आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि जो शुरुआत है वो अच्छी खबर से करनी चाहिए क्योंकि पूरा दिन जो है वो अच्छा जाता है। तो इस तरह का ऑडिशंस में आपसे बुलवाया जाएगा। देन आफ्टर दिस द फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, ऐसे करके 10 क्वेश्चंस कुछ लिखे होते हैं। कुछ आपसे बुलवाया जाएगा, लाइक वहाँ पे लिखा होगा 89, 99, 79, ये सारी चीजों को आपको बुलवाया जाएगा, बट वो भी हिंदी में, लाइक 79, 89, 99, तो इस तरह को आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। देन यू विल गेट सम डिक्शनरी वाले कुछ शब्द होंगे जिनको आप इंग्लिश प्रोनाउंस की जाएगी, आपको हिंदी पढ़ने को बोला जाएगा, आपसे शायरी पढ़वाई जाएगी, आपसे पोइट्री पढ़वाई जाएगी, हिंदी कविताएं आपसे पूछी जाएंगी। देन आपका एक एग्जाम्पल राउंड होगा जिसमें आपको एक थीम दी जाएगी जिस पर आपको लाइव शो करना है। तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस है मेरा अलग अलग ऑडिशंस का, जैसे अलग अलग स्टेशंस पे मैंने काम किया है। तो ये सब करके डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं। तो आई थिंक आई हैव डन फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बस आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर, नेवर एवर थिंक कि आप नहीं कर सकते हैं। डोंट से दैट यू कैन नॉट डू एंड डोंट यूज the no word in your life। अगर आपने खुद ने सोच लिया कि आप नहीं कर सकते हैं तो आपसे कोई नहीं करवा सकता है। So best of luck from my side, और I would like to request Professor Rashmi if any Q&A from your side, so please I'm available. I hope Professor Rashmi is listening to me. Hello, ma'am. Is there any question and answer related to this field? I am available for answer it. Yes, ma'am. There is a question. I just want to Can I become RJ? I just want to have the water. I'm a little Yes, bit ma'am. thirsty. Yes, ma'am. Thank you for allowing me. Yes, Rashmi, go ahead. Ma'am, can I become RJ even though I don't have much knowledge about film and cinema? Yes, Rashmi, go ahead, please. Ma'am, can I become RJ if What? I don't have enough?
if I don't have much knowledge about film and cinema, Okay, then what is the age if someone is asking? Do you know I the don't age? know, ma'am. It's gay. It's a Okay, boy so I and just want to game in mention. YouTube. Okay. So, see, I would like to mention here that if you don't have the knowledge of radio and film and cinema, you can become a radio jockey because जो knowledge है वो कब तक नहीं आती है जब तक हम नहीं सीखते हैं. Whenever you will start learning, you will get the knowledge. Knowledge doesn't mean that you will never get. And knowledge you can get any time. So अगर आपके पास कोई knowledge नहीं है तो आप knowledge लेकर radio jockey बन सकते हैं. Okay. Ma'am, there is I another hope question. I'll Any age answer. limit? Any age limit to become an? Hello. Hello. Hello, ma'am. Yes, yes. Ma'am, Rashmi any had age answered limit to already. become an? Any age limit for to becoming an RJ? No age limit. But now these days it's like retirement की age से पहले radio jockey बन जाइए तो ज़्यादा better रहेगा. Okay, ma'am. What are the perks of being an RJ? What are the what? Perks, advantages of being an RJ. What are the advantages of being an RJ? Yes. Okay, the first advantage is you will get the chance to become a speaker in the webinar from Royal College. This is the first advantage, and I'm feeling privileged. And I would like to thank again Dr. Patil, sir, for this opportunity because now these days, like the current, the privilege, the advantage I am sharing here, that I'm only talking, and everybody is listening. So this is a plus point of RJ. आप बोलेंगे और सारा हिंदुस्तान सुनेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज को अगर कोई एक बार सुने और सुनता ही जाए, so this is the best advantage according to me. The other advantage, if you want to use social media, you will become famous. The best advantage according to me, the satisfaction should be there. If you are satisfied with your job, this is the best advantage. Is there any language barrier for becoming RJ? Language barrier as in depend which channels you are going to use. If you are going to join Radio 1, Radio 1 is totally English, so you have to be very your communication should be very proper if you are going to use English channel. If you are going to use All India Radio or other channels, your Hindi should be proper. Your English also should be proper. So there is no language barrier, but the tone should be proper. For example, I'm Punjabi, so I'm not using the Punjabi tone here. Whenever I talk in Hindi, I use the Hindi tone. Whenever I talk in English, I use the English tone. Or whenever I start in Punjabi, the tone should be different. So you have to learn the tone. Then language barrier doesn't matter. I don't think so for the language barrier. But if you are talking in most of the time, like South Indian, if I'll say the South, so the South English should be like थोड़ा सा जो है वो फर्क आ जाता है. So उस चीज को आपको सीखना चाहिए because when I was giving my audition, so one of my another friend also tried and she was from Punjab. And from Ganganagar, sorry, she was from Ganganagar. So जो आपकी जो टोन है, like अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो मेरी जो टोन है वो पंजाबी से मिक्स नहीं होनी चाहिए. और if I'm talking in English, my tone should be proper according to the English communication. So if you will learn the communication, there's no language barrier. Over to you, Okay, Rashmi. ma'am. Ma'am, already you have said, but there is still some people asking 5 qualities essential for becoming an RJ. 5 qualities. Be original or be quick to answer and don't think that your voice is not good. So develop your voice
जैसा आरजे आप बनना चाहते हैं वैसी आवाज अपनी आप उससे बात करना स्टार्ट कीजिए. द अनदर क्वालिटी इज डोंट फील ashamed फॉर लर्निंग. स्टार्ट रीडिंग. अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेना स्टार्ट कर दीजिए. दीज आर दी क्वालिटीज दैट आई कैन मेंशन, बट I would like to mention here that there's no criteria proper. That's why I didn't mention the definition of radio as well, because जो चीज हम सुनकर, because radio is a like broadcast media India का, and according to the broadcasting media, you will not be able to define in the words. So the alphabets, the 26 alphabets are not enough to define the definition of radio and not able to define the qualities. I would not आई जस्ट वांट टू सेट कि लाइक मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके अंदर ये 5 क्वालिटीज हैं तो आप आरजे बन सकते हैं, बट आई वांट टू मेंशन हियर कि ये 5 क्वालिटीज आप डेवलप कीजिए, बाकी की आपको धीरे धीरे आती जाएगी. दैट इज द मेन थिंग फॉर. Okay, ma'am. And there is another question. Can you tell something about radio scripting as profession, not an RJ, only writing? ओनली राइटिंग, Yes, ma'am. नॉट एज एन प्रोफेशन, एज इन कैन यू रिपीट? The question is same. Can you tell something about radio scripting as a profession? Means she doesn't want to become an RJ. She just want to do a radio scripting idea. Okay, writing. So you can use writing, but for writing you can try as in jingles, because हम jingles लगाते हैं, लिखते हैं, तो jingles लिखे जाते हैं तभी तो रिकॉर्ड किए जाते हैं. रेडियो प्रोमोस हो गए, रेडियो टैगलाइंस हो गई, तो इसमें यू कैन ट्राई. And scripting में you can help to the RJ, but now these days like depend, because now these days whatever I do, जो भी RJ है, if you will also become a radio jockey, तो आप वही बोलना पसंद करेंगे जो आप लिखते हैं, जो आपकी सोच है, राइट. और चैनल की सोच ऑल्सो मैटर्स कि वो आपको क्या बोलने के लिए बोला जाता है. दैट इज द मेन थिंग. सो नाउ दीज डेज लाइक प्राइवेट रेडियो स्टेशन यूज्ड टू गिव द स्क्रिप्ट कि आपको यही बोलना है और इतने टाइम तक बोलना है. देन यू कैन अप्लाई. ऐसे चैनल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट जो है रेडियो जॉकीज को दी जाती है, बट आई वुड प्रेफर कि मेरी स्क्रिप्ट मैं बोलूं. सो यू कैन ट्राई नॉट फॉर द रेडियो जॉकी, बट योर स्क्रिप्ट विल वर्क फॉर रेडियो जिंगल्स. रेडियो जिंगल्स मीन्स जो रेडियो के बीच में प्ले किए जाते हैं, जिसका कनेक्शन जो होता है वो चैनल से होता है, बट देयर शुड बी अ मैसेज. लाइक कोरोना में आपको हाथ धोना है, मतलब कोरोना में नो रोना धोना, ओनली हाथ धोना. सो दिस इज जस्ट आई हैव मेड. सो दिस इज एक्सटेम्पो. सो इस तरह की कोशिश आप करके आप अपना राइटिंग पार्ट यू कैन सबमिट. सो इफ आई से कि कोरोना में नो रोना धोना, जस्ट हाथ धोना, then the another work you will get the music. इसमें म्यूजिक कौन सा होगा? सो वी हैव लाइक म्यूजिशियंस जो इसमें म्यूजिक ऐड करते हैं और सारी एडिटिंग करते हैं. सो दीज आर दी जॉब्स यू कैन अप्लाई फॉर दिस. ओवर टू यू रश्मि. Okay, ma'am. 1 second. Is there any restrictions on? Is there any restrictions of any topic you say? Restrictions, yes, there are some restrictions. If you will join All India Radio, because now these days private radio stations like quite open, but if you will join government radio station, so you cannot criticize other countries. And if you are a media student, just open radio and television book, you will get the chapter number 3 or chapter number 2 में you will get the आचार संहिता. This is called आचार संहिता, कि रेडियो पर क्या क्या नहीं बोलना है. यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द अदर कंट्रीज. और जो करंट हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें अगर उनकी कोई पॉलिसी है, यू कैन नॉट जस्ट क्रिटिसाइज. और रिलीजन, यस, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी अदर रिलीजन. Or better to not mention about, like whenever I go, I used to just you are listening RJ TJ, you are listening RJ Taran. Sometimes used to say RJ Taranjeet. I'll never mention that you are listening Taranjeet Kaur Chawla. So better to don't mention your surname, because with the surname you are telling your caste, you are telling your religion. So आप एक कहीं ना कहीं किसी एक religion को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं. तो इस तरह की चीजें मना की जाती है. Another thing in radio, they won't allow you to एक रिलीजन को बढ़ावा देना और दूसरे को कम करना. और आपकी टॉक से कोई दंगे नहीं होने चाहिए, दंगे फसाद ना हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए. सो दीज आर द मेन थिंग दैट शुड बी प्रोहिबिटेड. Okay, ma'am. That's all. Anything else from my side, Professor Rashmi? Yes, ma'am. Thanks a lot.
That's all. Okay, Yeah, only that. Thanks from your side or from my side? So, ma'am, I would like to express my vote of thanks, ma'am. Oh, please go ahead. I would love to listen. Okay. Okay, ma'am. I would like to express my gratitude to our President Sir, Shri Rajnikant Shah, for always supporting us. I would like to thank our Principal Sir, Dr. Vivek Kumar Patil, for always motivating and encouraging us to conduct the sessions. I would like to appreciate our director, Mr. Prashant Shah Sir, for always giving us important direction. I would like to express my deep sense of gratitude to our speaker, RJ Taranjit Kaur ma'am, for taking time and guiding us. I would like to thank BAMMC coordinator for his support and encouragement. I would like to thank Professor Meera Menon ma'am for her assistance and cooperation. I would like to appreciate all the coordinators, teaching and non-teaching staff of Royal College. Lastly, I am very grateful to all the participants for kindly patiently waiting for this session. And even though we have technical issues, still they came and they participated actively. Thank you for your support and for making the seminar and webinar a successful. Thank you, everyone. I would like to end this meeting right now. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.